to all of you. Good morning, sir. Respected Principal Sir Dr. Rajesh Kumar in absentia, Administration of the College, Dr. Nishchay Bahal, Head Department of Computer Science, Dr. Rajiv Puri, Convener IIC, Professor Ritika, and my dear students. Students, we have gathered here today to celebrate one of the most important days in today's modern era, that is International Entrepreneurship Day. I hope most of you are aware of this buzzword called entrepreneurship. So, under the able guidance of our worthy principal and the entire IIC team, Institution Innovation Council, which is also convened by Dr. Rajiv Puri, we keep on celebrating these types of activities so that students come across different experiences, different talks, and it is a ever learning curve. So we are here to commemorate and mark the importance of this International Entrepreneurship Day. And fortunately, the speaker of the day is also our convener, Dr. Rajiv Puri, who is also the Innovation Ambassador. So I hope this session will be very enlightening and we will gather a lot of insights and inputs to how to be a successful entrepreneur. You might have come across various, even the channels, satellite channels are nowadays running programs like Shark Tanks, and people who are creative and innovative like you, they come across with their ideas and they propose and pitch themselves in front of the experts who are already successful in their own respective fields. So, sir will be talking upon the potential of online entrepreneurship today. Because the audience is mostly from computer science background, you all are IT students, so there is a huge opportunity these days to successfully be a startup owner, founder. So there are a lot of details and intricacies involved in it. How do you start a new venture? How can you be a successful entrepreneur? I hope Dr. Rajiv Puri will be touching upon these aspects today. Without taking much of your time, I'd like to invite our worthy Head of the Department, Dr. Nishchay Bahal, to please come up on the stage and welcome our speaker of the day. Thank you, my very dear friend, Professor Vishal. First of all, I welcome you all to this event. I also welcome Professor Dr. Rajiv Puri, who's convener for the IIC of DAV College Jalandhar, Professor Ritika Sokti, and my very, very dear students. So, today is International Entrepreneurship Day. आपको पता है कि आजकल बच्चों एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, बिकॉज अगर आप वर्ल्ड के रिचेस्ट लोग देखो तो nobody is in the job उनमें से, everybody is in the business, चाहे वो बिजनेस हेल्थ केयर का हो, चाहे वो बिजनेस एंटरटेनमेंट का हो, चाहे वो बिजनेस मेडिकल इंडस्ट्री का हो, या कोई भी बिजनेस हो. एक दो एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा. 2-3 minutes में I'll come down the stage, then I'll invite Professor Rajiv Puri to come on the stage. So लोगों ने ये फील्ड क्यों चूज करना शुरू किया? बिकॉज दिस इज द पाथवे टू बिकम बिलियनियर मिलियनियर, वेरी इजी पाथवे. आपने नाम सुना होगा जीरोधा का, सुना? जीरोधा 2010 में एस्टैब्लिश हुआ था. सबसे पहले जब 2010 में एस्टैब्लिश हुआ, उसमें डिस्काउंट पे मार्केट ट्रेडिंग शुरू कर दी कि भैया अगर आप किसी ट्रेडर के पास ब्रोकरेज देते हो 20 रुपीज, मैं आपको 15 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूँ, मैं घाटा खा रहा हूँ, आप मेरे पास आ जाओ. ठीक है, इस आइडिया से उसने शुरू किया और लोगों को बहुत अच्छा लगा, लोगों ने जाना शुरू कर दिया, लोगों को पैसे बचते हैं. द सेम थिंग जोमेटो ने किया. पहले कूपन बड़े बड़े लगते थे, अब कूपन ऑलमोस्ट लगते ही नहीं. ठीक है, 2013 में उसने ऐप बना दी, 2014 में उसने लोगों को एजुकेट कर दिया, मार्केट अवेयरनेस कर दी, जीरोधा वेरासिटी बना दी, जिससे लोगों को पता चले कि मार्केट है क्या, शेयर मार्केट क्या है क्या, जिससे यंगस्टर्स मार्केट में आना शुरू हो गए. हमारे कई टीचर्स भी एंटर करना शुरू हो गए बीच में. ठीक है, उन्होंने 2016 में जीरोधा के 1 लाख एक्टिव कस्टमर्स हो गए. 1 लाख एक्टिव कस्टमर्स. एक कस्टमर से वो अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपीज फीस ले देते हैं. तो यू कैन वेल मल्टीप्लाई द स्टफ, राइट?
2017 में उन्होंने शेयर्स के साथ म्यूचुअल फंड लॉन्च कर दिया। क्या म्यूचुअल फंड भी जाने की जरूरत नहीं है, हमारे से लो, वन प्लेटफॉर्म वन सोल्यूशन, ऑल सॉल्यूशंस इन वन प्लेटफॉर्म। ओके, और 2019 17 to 19 जो 1 लाख एक्टिव कस्टमर्स थे वो बन के 10 लाख। मैं आपको एक स्टार्टअप की स्टोरी सुना रहा हूँ। 10 लाख एक्टिव कस्टमर्स बन के कोविड के टाइम पे उनका जो प्रॉफिट था 2020 मार्च 20 का, मैंने कुछ डाटा लिया है उनके एनुअल रिपोर्ट से लिया, उनका 430 करोड़ का प्रॉफिट था। दे स्टार्टेड विद 2010 इन लॉस, और कोई भी जॉब आपको इतनी जल्दी मिलियनियर और बिलियनियर नहीं बना सकता। और 2020 में 10 इयर्स के बाद 430 करोड़ का उनका प्रॉफिट था आउट ऑफ देयर ऑल एक्सपेंसेस, और ये प्रॉफिट बहुत मैनेज करके प्रोजेक्ट करते हैं। और 2020 में उनके जो कस्टमर्स हो गए वो के 7 मिलियन, और 2024 में एज ऑन डेट उनके जो एक्टिव क्लाइंट्स हैं वो हैं 75 लैक्स। 2016 में 1 लाख थे और 2024 में कितने हो गए? So that is all hats off to Mr. Nitin Kamath, who is the CEO of this startup turned unicorn। आपको पता होगा यूनिकॉर्न कौन कौन से बनते हैं। तो दैट वाज द फास्टेस्ट। जॉब में अगर कोई रहेगा तो साल का 10,000 भी बचा ले, 50,000 बचा ले तो बहुत बड़ी बात होती है। सेविंग बंदा कहता है यार मैं पीएफ में डालूं, पीपीएफ में डालूं, वो कर लूं। ओके, बट ऑल द स्टार्टअप्स हैव नॉट बीन सक्सेस। ओके, 0.0006% स्टार्टअप ही यूनिकॉर्न में कन्वर्ट होते हैं। बस पूरी सारी यूनिकॉर्न में कन्वर्ट होते हैं। ओके, तो आपको पैशन से काम करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको अपने आइडियाज लाना पड़ेंगे। जो लोगों की प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करोगे तो भी आपको उनको कंफर्ट दोगे तो लोग आपको पैसे देंगे। ओके, जितने भी बिलियनियर्स हैं पूरी वर्ल्ड में, उनसे 14% बिलियनियर्स जो हैं वो फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट का काम कर रहे हैं। ओके, 12% मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, जो कारें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बाइक्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फैंसी बाइक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ऑल दैट। 12% टेक्नोलॉजी में, जो कोडिंग कर रहे हैं, वो भी बहुत अमीर हैं आजकल, वो भी बहुत प्राइस ले रहे हैं। 10% लोग फैशन में हैं, नाइका एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, काइली। ऑलराइट, 8% लोग फूड इंडस्ट्री में हैं, 8% हेल्थ में हैं, और सिर्फ 7% रियल एस्टेट में, जिनको हम सोचते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर बहुत अमीर होते हैं, इनके पास बहुत पैसा होता है, वो सिर्फ 7% मिलियनियर्स को कंट्रीब्यूट करते हैं। और 4% एनर्जी सेक्टर में, जो रिलायंस वगैरह हो गए। तो ओवरऑल आप देखो एजुकेशन में 0% मिलियनियर है। ऑलराइट, ठीक है, सर्विस क्लास में 0% मिलियनियर है, 0%। सो नोबडी विल बिकम मिलियनियर और बिलियनियर इन सर्विस। सो दैट मीन्स you have to go for entrepreneurship. So I appreciate the efforts of Professor Rajiv Puri, Dr. Rajiv Puri and his team कि इन्होंने इस इवेंट को कंसेप्चुलाइज किया और आप सब बच्चों को ये ट्रेनिंग देने आ रहे हैं। एक और छोटी सी एग्जांपल लेते हैं जोमेटो की। उनका इवेंट चल रहा है, एक मिनट संजय से पूछो बोर्ड मिला कि नहीं, बस 1 मिनट और लें। जोमेटो की देखो, जोमेटो कहाँ से शुरू हुआ था? जोमेटो भी डिस्काउंट से शुरू हुआ था। 2010 में उन्होंने डिस्काउंट देना शुरू किया था कि आप खाना बाहर क्यों लेने जाते हो, आपको महंगा पड़ता है, घर बैठे सस्ता पड़ता है। यही किया था, कूपन लग जाता 150 रुपए का 200 की थाली पे। लोग कहते थे 50 रुपए में मेरा तो पेट्रोल बच रहा, मेरे को जाने की जरूरत नहीं। क्या किसी ने इमेजिन किया था आज से 5 साल पहले कि घर बैठे ही आप खाना ऑर्डर कर पाओगे और जो डिलीवरी बॉय लेके आ रहा है उसको भी ट्रैक कर पाओगे? क्या किसी ने इमेजिन किया? सो दैट्स अ स्टार्टअप। ओके, फिर उन्होंने ब्लिंकिट भी ले लिया। मैं कल की न्यूज़ देख रहा था, जोमेटो वाज डूइंग हैप्पी रक्षाबंधन टू ब्लिंकिट, क्योंकि ब्लिंकिट उसने अडॉप्ट किया है, चैनल को अडॉप्ट किया उसने। सो 1.3 मिलियन ऑर्डर्स पर डे जोमेटो के, 1.3 मिलियन। जस्ट इमेजिन प्रॉफिट ऑफ 150 ऑर्डर्स पर ऑर्डर, 50 या 100 रुपये कम से कम वो कमाते हैं। 150,000 रेस्टोरेंट्स उससे कनेक्टेड हैं, और इंडिया के जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, हर रेस्टोरेंट को 10 ऑर्डर पर डे पर रेस्टोरेंट जोमेटो वाले दे रहे हैं। जो रेस्टोरेंट नहीं भी चलते थे, जिनकी लोकेशन बहुत बैकवर्ड थी, उनको भी जोमेटो से फायदा होना शुरू हो गया। और जो लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसकी कोई एज नहीं है। There have been entrepreneurs जिन्होंने एज 9 से शुरू किया, एज 10 से शुरू किया। आप फेसबुक की एग्जांपल देखो, मार्क जुकरबर्ग ने कॉलेज लेवल पे शुरू किया 19 इयर्स की एज में फेसबुक
ओके, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उसने शुरू किया। काइली कॉस्मेटिक्स, एज ऑफ 18। इवान स्पीगल, स्नैपचैट जिसने शुरू की, वो भी एज ऑफ 22। ऑल आर यंग कॉलेज स्टूडेंट्स ओनली। देन अली बाबा का आपको पता ही है, जैक मा 35 इयर्स की एज में। पर अगर आप ज़्यादा एज भी हो, हमारी जैसी एज के भी हो, इवन देन यू कैन डू द स्टार्टअप्स। आप KFC की एग्जांपल देख लो। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स 60+ की एज में उन्होंने KFC शुरू किया। उनको लगा कि मैं जो चिकन बनाता हूँ ये यूनिक टेस्ट है, नोबडी कैन मेक दिस टेस्ट, यू नो, तो आई कैन पैटर्नाइज दिस टेस्ट, यू नो, मैं इसको सेल कर सकता हूँ। मैकडोनल्ड्स का भी इसी तरह से हुआ, उसने भी, मैकडोनल्ड्स वाले ने 52 की एज में शुरू किया था। तो इंडिया में जो स्टार्टअप्स हैं या जो एंटरप्रेन्योरशिप्स हुई हैं या जो इंडस्ट्रीज हैं, उनका तो कोई एंडिंग नहीं है। नाम जितने मर्जी आप ले लो, क्रेड से शुरू हो जाओ, पेटीएम से शुरू हो जाओ, ब्लिंकिट से शुरू हो जाओ, जोमेटो से शुरू हो जाओ। न्यूमरस एग्जाम्पल्स, ज़ीरोदा, सो मेनी एग्जाम्पल्स, रेजरपे, आई मीन endless examples. The only thing that you need is a good idea, and good idea striking at good time, and very very important, a good decision making also very important, because बंदा जब सोचता मैं जाऊँ, there are so many constraints. आपकी फैमिली कहती है यहाँ पे रुको, so many factors that you have to take care. So I hope yours is the age to do all that wonders. So wish you all the best, and I take this pleasure to invite Professor Dr. Rajeev Puri to the and we do a formal welcome first of all, and then I invite him for the talk. Thank you very much. Now I invite Dr. Nishya Bahal, Professor Ritika Sopti, Dr. Reena to please kindly come forward and welcome our speaker of the day, Dr. Rajeev Puri. Two students पे है, आप एक So now I invite Dr. Rajeev Puri, speaker of the day, to please come up and take the stage. Very good afternoon to one and all. नींद तो नहीं आ रही सबको? तो अगर आ भी रही होगी तो उड़ने वाली है आप बस। ठीक है, so today as we all know कि इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप डे है और हम लोग सारे ऑलमोस्ट कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं। जो नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से प्लीज रेज योर हैंड। ओनली 2 3 4 5 फाइन, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आपके लिए भी ये सेमिनार है। ठीक है, आज तक आप लोगों ने इंटरनेट के इस तरफ बैठ के देखा है, आप लोग कंज्यूमर की तरह बिहेव कर रहे हो। ठीक है, अब इंटरनेट पे प्रोड्यूसर की तरह कैसे बिहेव करना है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं, इनके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है और ये कैसे काम करती है। वर्ल्ड वाइड वेब में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है दैट इज द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या जिसको हम बोलते हैं कि डोमेन नेम। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे ली है davjalandhar.com। इसमें DAV जालंधर जो है, दिस इज बेसिकली द डोमेन नेम, ठीक है, जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का रिजर्व किया हुआ है। और .com जो है दैट इज बेसिकली द टॉप लेवल डोमेन नेम। देयर आर सो मेनी टॉप लेवल डोमेन नेम्स, आपको अपनी जरूरत के हिसाब से चूज करने पड़ेंगे। इट कुड बी अ com, इट कुड बी एन org, इट कुड बी एन in, इट कुड बी co.in वगैरह वगैरह। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि ये वर्ल्ड वाइड वेब है क्या, दिस इज बेसिकली एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? जो इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा है। इसमें खास बात क्या है इस इंफॉर्मेशन सिस्टम में कि इट इज कंसिस्टिंग ऑफ द प्लेन टेक्स्ट जो आपके पास है, देन देयर आर इमेजेस, देयर आर एम्बेडेड वीडियोस एंड द ऑडियो। ये सारा फॉर्मेट मिल मिला के जो भी बन रहा है, दिस बेसिकली कंस्टिट्यूट्स द इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन को आपने यूजर फ्रेंडली तरीके से
कैसे दूसरों तक पहुंचाना है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज यूजर फ्रेंडली, कि जो यूजर्स हैं वो इस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर सकें, एंड इट इज नॉट ओनली मेंट फॉर कि आईटी स्पेशलिस्ट हैं या हॉबिस्ट हैं जिनको ये आता है, सिर्फ वही लोग इसको यूज कर सकें। इट शुड बी फॉर द जनरल पब्लिक, तभी ये चीज आपकी सक्सेसफुल हो पाएगी। एंड बिलीव इट और नॉट, इट हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन टुडेज इकोनॉमी। ये कब शुरू हुआ था, दैट इज ऑल हिस्ट्री दैट यू कैन रीड फ्रॉम द विकिपीडिया एंड ऑल अदर वेबसाइट्स। तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स में व्हाट यू रिक्वायर, बेसिकली यू रिक्वायर अ डोमेन नेम एंड यू रिक्वायर अ होस्टिंग स्पेस। आपने नेट पे कुछ भी अपना कोई वेबसाइट शुरू करनी है तो डोमेन नेम रिजर्व करना पड़ेगा, होस्टिंग स्पेस रिजर्व करनी पड़ेगी। डोमेन नेम इज गोइंग टू कॉस्ट यू domain name is going to cost you around 1,000 rupees for the .com, and hosting is going to cost you around rupees 2,500 a year for say 2 GB to 4 GB hosting space। मतलब जो टोटल खर्चा है एक वेबसाइट को रन करने का साल का, आप लगा के चलो 3500 से 4,000 रुपए के आसपास है, ठीक है, एट द मोस्ट। मतलब जो अगर आप बेसिक अपनी वेबसाइट रन करना चाहते हैं, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू द इंट्रिकेसीज ऑफ hosting the website, there are certain technologies that work beyond this, HTML है, CSS है, JavaScript है, इसको हम कवर कर देते हैं। What is entrepreneurship? यहाँ से हमारा आज का लेक्चर ये इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है कि इंटरनेट और entrepreneurship का आपस में लिंक क्या है। तो उसके लिए पहले आपको entrepreneurship को समझना पड़ेगा। Entrepreneurship जो है उसमें फोकस आपका 3 चीजों पे रहना चाहिए। The process of starting and running a new business. The process of starting and running a new business with focus on number 1 is innovation. आपने जो भी एंटरप्रेन्योरशिप चूज करनी है, जो फील्ड आपने चूज करना है, उसमें कुछ ना कुछ नयापन होना चाहिए। इनोवेशन मींस नयापन। अगर आपके बिजनेस में नयापन नहीं है, देन यू हैव टू फेस टफ कंपटीशन, ठीक है। दूसरी बात जो एंटरप्रेन्योर्स में होनी चाहिए, दैट इज द रिस्क टेकिंग एबिलिटी। ये सर्विस क्लास में नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका माइंडसेट रिस्क टेकिंग वाला है तो देन यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप। और तीसरा, इन दोनों के अलावा ग्रोथ, अंदर से बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए कि आपने आगे कैसे बढ़ना है। ग्रोथ इज इम्पोर्टेंट। आप बिजनेस शुरू कर लोगे, किराने का रोज का 1,000-2,000 रुपया सेल करके कमा लोगे और वहां तक ही रह जाओगे, दैट इज नॉट एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप इज कि डे बाय डे यू आर इंप्रूविंग योर बिजनेस, कुछ ना कुछ आप ग्रो कर रहे हो अपने बिजनेस में। इंपॉर्टेंट क्यों है एंटरप्रेन्योरशिप आज के जमाने में? पहली बात, इट ड्राइव्स द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री को आगे बढ़ना है तो वहां पे उस कंट्री में एंटरप्रेन्योर्स का होना बहुत जरूरी है। एंटरप्रेन्योरशिप नॉट ओनली इज इम्पोर्टेंट फॉर द एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ, पर ये जॉब्स भी क्रिएट कर रहा है। वो एक फैमिली नहीं पाल रहा, एक एंटरप्रेन्योर, वो अपने साथ काम करने वाले सब लोगों की फैमिली को भी वो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। सो इट इज फॉर क्रिएटिंग जॉब्स एंड फॉस्टर्स इनोवेशन। नयापन तो चाहिए, चेंज तो चाहिए लाइफ में, ठीक है। अगर सेम चीज, सेम वही मोनोटनी रहेगी लाइफ में, कोई नयापन नहीं आएगा तो सब लोग बोर हो जाएंगे, है ना। अब नेक्स्ट, अब इन दोनों टॉपिक्स को रिलेट कैसे किया जाए कि व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप ऑन द वेब, इंटरनेट पे क्यों। पहली बात, ग्लोबल रीच। जो आप अपना बिजनेस शुरू करोगे, उस बिजनेस की जो रीच है वो ग्लोबल होने वाली है। आप लोग एक छोटी सी शॉप खोल लोगे, लेट से उस शॉप पे कहाँ से बंदे आएंगे। अगर ज़्यादा पॉपुलर नहीं है तो आपके एरिया वाले आएंगे, मोहल्ले वाले, ठीक है। थोड़ा सा पॉपुलर हो जाएगा तो आसपास की लोकेलिटी से आने शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा पॉपुलर हो गए तो पूरे शहर से आने शुरू हो जाएंगे, बट नॉट बियॉन्ड योर सिटी और मे बी स्टेट। पर अगर आप कोई बिजनेस इंटरनेट पे शुरू कर रहे हो और आपका प्रोडक्ट जो है वो पॉपुलर हो रहा है, देन यू विल बी गेटिंग कस्टमर्स फ्रॉम अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स। दूसरी कंट्रीज से भी आपको ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे। सो देयर इज अ ह्यूज मार्केट पोटेंशियल ड्यू टू इंटरनेट। दूसरा रीजन,
लो बैरियर टू एंट्री। आप कोई भी बिजनेस शुरू करोगे, दुकान खरीदोगे, 50 लाख रुपए दुकान में लगाने पड़ेंगे, माल भी डालना पड़ेगा, डेकोरेशन भी करनी पड़ेगी, इंटीरियर करना पड़ेगा, ठीक है, फिर बंदे रखोगे वहां पे, तो मिल मिला के जो है वो खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है और आमदनी उतनी नहीं होती है। शुरू के 5 7 10 साल तो आपको बहुत दिक्कत रहेगी, फाइन। पर इंटरनेट पे काम करने के लिए क्या चाहिए? 4500 रुपए, मैंने अभी आपको बता दिया। 1000 रुपए का डोमेन नेम, 3500 रुपए की होस्टिंग स्पेस, ठीक है, बाकी का 1000 रुपया खाने पीने के लिए, फाइन। सो विद 4500 रुपीज ओनली यू कैन सेट अप योर ऑनलाइन शॉप, अगर आपको HTML आती है तो, ठीक है, या आपको वेब डिजाइनिंग आती है तो, नहीं तो आप कोई अपने फ्रेंड की हेल्प ले सकते हो। देन आज की जनरेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप कभी भी कहीं से भी काम कर सकते हो। आज की जनरेशन जो है ना वो ऑफिस जाने के लिए तैयार नहीं होती। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक अपने ऑनरेबल CM की वो वीडियो देख रहा था, उसमें वो बोल रहे थे कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनमें डिसीजन मेकिंग पावर बड़ी होती है। वो कहते जी कैसे? वो कहते जी पहले तो जब सुबह घर से निकलते हैं तो निकलने के लिए उनके पहले डिसीजन बनाना बड़ा मुश्किल है कि आज स्कूल जाना कि नहीं जाना है। फिर वो डिसीजन बना लेते हैं कि चलो जाना है, रास्ते में कई बार मूड चेंज होता है, फिर उस डिसीजन को पक्का करते हैं कि हाँ जी जाना है, ठीक है। तो वो बैरियर जो है वो यहाँ पे इंटरनेट पे नहीं है। यू कैन वर्क फ्रॉम अ स्मॉल गराज इन योर होम, अपने बेडरूम से, अपने ड्राइंग रूम से, इवन अपने किचन से भी आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। एंड टाइमिंग की कोई बैरियर नहीं है कि 9 बजे ऑफिस पहुंचना है जी या 10 बजे ऑफिस पहुंचना है। यू कैन वर्क एज पर योर चॉइस। So what are the different opportunities available on internet? ये हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। The first opportunity that I'm going to discuss is e-commerce, that is selling the products online. ये वेबसाइट्स आप लोगों ने देखी होगी सबने, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, अमेजोन है, ठीक है, और PVR है, और कई ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं, शॉपिफाई है। These websites you can use for selling your products. तो इसमें आप क्या बेचोगे? सबसे पहले ये प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यू नीड टू आइडेंटिफाई द नीश प्रोडक्ट्स, लॉन्च एन ऑनलाइन स्टोर स्पेशलाइजिंग इन नीश प्रोडक्ट्स और यूनिक आइटम्स। जो आइटम्स यूनिक हैं वो जल्दी बिकेंगी, जो आइटम्स रन ऑफ द मिल हैं, लेट्स से जैसे आपने साबुन तेल बेचना है तो वो बड़ा मुश्किल है, पर अगर तेल कोई स्पेशल है, आजकल कौन सा पॉपुलर है यहाँ पे नेट पे? आदिवासी तेल, कैसे बिक रहा धड़ाधड़, है ना। नीश प्रोडक्ट है, उसने टारगेट किया कि जिन लोगों के बाल झड़ रहे हैं, जिन लोगों के बाल नहीं है, उनको टारगेट किया जाए, एंड दे आर सेलिंग। तो इस तरह का कुछ प्रोडक्ट आपको आइडेंटिफाई करना है जिसमें कस्टमर्स की नीड है। आप उस प्रोडक्ट को डेवलप करो और उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करो, एंड यू विल बी गेटिंग सक्सेस, ठीक है। देन अकेला प्रोडक्ट नहीं बेचना, यू कैन मेक सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस। इसका कॉन्सेप्ट किस किस को पता है सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस का? Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी कुछ साइट्स हैं, ये देखती हैं कि रेगुलरली लोगों को चीजें कौन कौन सी चाहिए। जैसे आप कोई हैबिचुअल कॉफी ड्रिंकर हो और Amazon को लगता है कि आपने 100 ग्राम कॉफी मंगाई है, ये आपकी 1 हफ्ता या 2 हफ्ते या 1 महीना चलेगी और उसके बाद आपको दोबारा जरूरत पड़ेगी। एंड समटाइम्स यू नीड टू परचेज ओवर द इंटरनेट। आप कॉफी परचेज करने जाते हो तो कितना टाइम लगेगा इंटरनेट पे कॉफी परचेज करते हुए? एवरेज बताना। 5 मिनट्स कभी नहीं लगते। आप अभी परचेज करके देखो, यू विल बी स्पेंडिंग ऑलमोस्ट मोर देन हाफ एन आवर इन स्पेंडिंग ऑनलाइन। क्यों? मैं पहले कॉफी सर्च करूंगा, उसके बाद देखूंगा ब्रांड कौन कौन से हैं, उसके बाद सस्ती कौन दे रहा है, उसके बाद इसके साथ फ्री क्या मिल रहा है, एंड सो ऑन। ऐसा ही होता है क्या? कभी कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपने 5 मिनट में खरीद के और उसके बाद फोन बंद कर दिया हो? कभी भी नहीं होता। वी इंडियंस फर्स्ट मेक अप आवर माइंड कि हमने खरीदना क्या है, फिर हम लोग उसकी मार्केट सर्वे करते हैं कि कितने का मिल रहा है, जहां से 1 रुपया भी बचता है तो हम लोग वहां से ऑर्डर करते हैं, ठीक है। इस मेंटेलिटी को Amazon ने और फ्लिपकार्ट ने तोड़ा। कैसे? सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस देके, ठीक है। लाइक आई एम बिजी और मुझे पता है कि मेरा आधा पौना घंटा कॉफी खरीदने में लग जाना है, यार मैं क्यों वेस्ट करूं जब मुझे पता है कि मुझे नेस्कैफे ही चाहिए हर बार। तो आई कैन सब्सक्राइब टू द सर्विसेज ऑफ नेस्कैफे वेंडर, जो हर महीने ऑटोमेटिकली मेरे क्रेडिट कार्ड में से पैसे डिडक्ट करता रहेगा और मुझे ऑटोमेटिकली कॉफी की 1 बॉटल शिप करता रहेगा। फाइन, गुड एनफ।
अब उसके साथ साथ आप कुछ उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हो। अगर कोई बंदा कॉफी पी रहा है तो हो सकता है वो चाय का भी शौकीन हो, तो आप कोई बंडल्ड ऑफर बना सकते हो, बिस्किट्स की बंडल्ड ऑफर बना सकते हो, ठीक है। और कोई ऐसे प्रोडक्ट्स जो कॉफी लवर्स को अच्छे लगते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स बंडल करके आप उनके सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस बना के आप लोग सेल कर सकते हो, ठीक है। गुड आइडिया कि नहीं? Yes. ड्रॉप शिपिंग इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, और मेरे ख्याल से पिछले 1-2 साल में मैंने 1-2 स्टूडेंट्स भी देखे हैं अपने जो ये ड्रॉप शिपिंग करते हैं। ड्रॉप शिपिंग क्या है बेसिकली कि मैन्युफैक्चरर कोई और है, कस्टमर कहीं और पे है, और आप सिर्फ मैन्युफैक्चरर और कस्टमर को आपस में लिंक कर रहे हो। यू हैव क्रिएटेड योर ओन वेबसाइट एंड यू हैव प्लेस्ड सर्टेन प्रोडक्ट्स। लेट्स से ये पॉइंटर था, पॉइंटर बनाया किसने? लॉजिटेक ने या आईबॉल ने। पॉइंटर चाहिए किसको? से निश्चय सर को चाहिए या विशाल सर को चाहिए, ठीक है। और मैं बीच में अपनी एक वेबसाइट बनाऊंगा और वहां पे ये पॉइंटर सेल करूंगा मैं उस वेबसाइट पे, फाइन। तो दैट मीन्स कि अब मुझे ये पॉइंटर मेरे पास होना चाहिए तभी मैं उनको आगे शिप कर सकूंगा। इट्स नॉट नेसेसरी। द ड्रॉप शिपिंग हैज गिवन यू द फैसिलिटी कि यू एक्सेप्ट द ऑर्डर्स फ्रॉम द कस्टमर एंड देन फॉरवर्ड दीज ऑर्डर्स टू द मैन्युफैक्चरर। वो मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर के प्रेमिसेस पे उस प्रोडक्ट को शिप कर देगा। इसमें किस किस का बेनिफिट है? नंबर 1, इसमें मेरा बीच में बेनिफिट है कि मुझे इसके लिए स्टॉक मेंटेन नहीं करना पड़ा, ठीक है। मतलब मुझे उस कंपनी को पैसे नहीं देने पड़े। अगर वो मैं उसको ऑर्डर भी करता 50-100 पीस तो कम से कम लेता मैं, ये मेरे खर्चा बच गया। दूसरा, कस्टमर को क्विक डिलीवरी मिल गई क्योंकि ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से आपके पास पहुंच रहा है। तीसरा, आपके स्टोरेज की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। चौथा, शिपिंग कॉस्ट रिड्यूस हो गई। कैसे रिड्यूस हुई? पहले मैन्युफैक्चरर मेरे पास भेजता, फिर मैं आगे कस्टमर के पास भेजता, 2 बार शिपिंग करनी थी। अब सीधे डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कस्टमर पे जा रही है तो 1 बार शिपिंग करनी। सो यू विल बी गेटिंग चीपर प्रोडक्ट्स। तो ये ड्रॉप शिपिंग जो है, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर सेलिंग ऑनलाइन। तो बहुत से चाइना के भी ऐसे वेंडर्स हैं, आप उनके साथ भी टाई अप कर सकते हो कि वहां से प्रोडक्ट्स आपने देखे, उनके कैटलॉग्स आप डेली रिसीव कर सकते हो। एक्सेल शीट में वो लोग कैटलॉग्स दे देते हैं एंड देन यू कैन हैव योर वेबसाइट। उस एक्सेल शीट में से कैटलॉग्स में से प्रोडक्ट निकाल के आप अपनी वेबसाइट पे डालते रहो, फाइन। जैसे जैसे ऑर्डर्स आते रहेंगे यू कीप ऑन फॉरवर्डिंग दोज ऑर्डर्स टू द चाइना वेंडर और वो वहां से डायरेक्टली शिप कर देंगे, वेरी इजी, ठीक है। और आप अपना बीच में कट उसका रख सकते हो। इसमें सर प्रॉफिट शेयर करेंगे? हाँ जी, मार्जिन आप अपना रखोगे। जैसे कस्टमर ने मेरे से ये 200 रुपए में परचेज किया तो पैसे मेरे पास आए, मैंने आगे 200 का ऑर्डर प्लेस किया तो मेरे को 150 से वहां से मिल रहा था, 50 रुपीज मेरे पास बच गए। मेरा इन्वेंट्री में आया, इन्वेंट्री खत्म है, मेरे पास कोई इन्वेंट्री की जरूरत नहीं है। हाँ, ना स्टोरेज की जरूरत है, गोडाउन की जरूरत नहीं है, ना इन्वेंट्री की जरूरत है। ऑर्डर रिसीव करीजिए और आगे प्लेस करीजिए। Then second idea for earning on internet is digital content creation. आप लोग इंटरनेट पे अपने ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हो फॉर अ स्पेसिफिक नीश, एक मार्केट के लिए, और अपने ब्लॉग्स को आप एड्स के थ्रू या एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आप मोनेटाइज कर सकते हो। लाइक देयर इज अ ब्लॉगर नील पटेल, आप लोग इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो और उसके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं उस ब्लॉगर के, और वो वहाँ पे इंटरनेट पे कैसे आपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, इसके वो आर्टिकल्स लिखता रहता है और लोग उसके आर्टिकल्स पढ़ते हैं। उसके आर्टिकल्स पढ़ के वो उसके आसपास एड्स देखते हैं, वहाँ से उसकी सर्विसेज परचेज करते हैं एंड देन ही इज अर्निंग गुड मनी। सो ब्लॉगिंग इज वन ऑफ द ऑप्शंस। पहले जब व्लॉग नहीं होते थे उस टाइम पे ब्लॉगिंग ज्यादा चलती थी। लोग कहीं पे ट्रैवल करना हो तो वो ट्रैवल के ब्लॉग्स पढ़ते थे अपने, ठीक है। आप कोई बुक रिव्यू के ब्लॉग्स हो सकते हैं बुक लवर्स के लिए, फूड के ब्लॉग्स हो सकते हैं फूड लवर्स के लिए। तो किसी भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को आप पकड़ सकते हो और उसी कैटेगरी पे ब्लॉग बनाओगे। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ करते रहो, ठीक है। लाइक फूड ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿਓ, ट्रैवल ਦਾ भी ਵਿੱਚ लगा दियो। नो, आपको अपने कस्टमर्स आइडेंटिफाई करने हैं या अपना पोटेंशियल पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपका एक्सपर्टीज किस में है और उसमें ब्लॉग शुरू करो। देन YouTube चैनल यू कैन हैव। आजकल तो बहुत लोग जो है वो YouTube चैनल पे अपना अच्छा अर्न कर रहे हैं। दे आर क्रिएटिंग वीडियोस
ठीक है, और इस पे भी बहुत सही आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक नया कॉन्सेप्ट मैंने देखा था 2-3 साल पहले, कुछ स्टूडेंट्स थे मेरे, वो रिएक्शन वीडियोस बनाते थे। पता है क्या होती है रिएक्शन वीडियोस? हाँ, तो वो रिएक्शन वीडियोस, हम लोग तो रिएक्शन वीडियोस देखते हैं, ठीक है, हम लोग अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पर वो रिएक्शन वीडियोस बना के वहां से अर्न कर रहे हैं। तो दैट कैन बी वन ऑफ द ऑप्शंस। फॉर दैट व्हाट यू नीड, आपको एक कैमरा चाहिए, लैपटॉप चाहिए, एक अच्छा माइक चाहिए, ठीक है, इंटरनेट की फैसिलिटी चाहिए। यू कीप ऑन वॉचिंग द कंटेंट और उसके बारे में अपनी रिएक्शंस देते रहो और पैसे कमाते रहो। दैट इज वन ऑफ द ऑप्शंस। देन पॉडकास्ट, जिनकी क्लास है। देन पॉडकास्ट है नेक्स्ट। मेरी क्लास हो जाए। बस सारे ना सब्जी सारे मत चले जाओ, जिसने वाकई में पढ़ना है वो तो जाओ। जो लैब वाले हैं वो बैठे रहो। चलो चलो शुरू। पॉडकास्ट में क्या है बेसिकली कि दो लोग आपस में बैठ के किसी भी एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशंस करते हैं और उस डिस्कशन से वो लोग पैसे अर्न कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज द वे ऑफ अर्निंग। बैठे Then you can have online courses, you can create educational content. There are websites like Udemy. आपको एक पोटेंशियल बताता हूँ इस Udemy का। आप Udemy पे कोई भी कोर्सेज परचेज कर सकते हो। मैंने अभी पीछे कोई एक कोर्स देखा था कि एप्पल की डेवलपमेंट मैंने सीखनी थी कि स्विफ्ट में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। आई परचेज वन कोर्स फ्रॉम दिस Udemy वेबसाइट और मैंने वो कोर्स जो है वो 500 रुपीज में परचेज किया। And I was surprised to know about the sales of that course. 35,000 लोग वो कोर्स खरीद चुके थे। तो you can multiply 35,000 with 500 rupees and see the potential money that he has earned. तो आपको अगर आपकी किसी चीज में एक्सपर्टीज है तो आप वो चीज अपने उसका कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, ट्यूटोरियल बना सकते हो एंड यू कैन सेल दोस ट्यूटोरियल्स ऑन द Udemy और Coursera और teachable type of platforms. Then tutoring, ऑडा क्लासेस के बारे में सुना है? स्कूल स्टूडेंट्स के लिए जो नर्सरी से लेके केजी और सीनियर विंग तक के हैं, उन लोगों के लिए ये ऑडा क्लासेस पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स की ट्यूशंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट, अगर आपको लगता है कि आपकी सोशल स्टडी अच्छी है, आपका मैथ्स अच्छा है, आपकी साइंस अच्छी है, तो यू कैन स्टार्ट समथिंग लाइक ऑडा क्लासेस और ऑनलाइन आप ट्यूशंस देके अपने पैसे अच्छे से अर्न कर सकते हैं। कोचिंग भी है। अब इस कोचिंग में आजकल फिटनेस कोचिंग का बड़ा ट्रेंड है कि आजकल मेट्रो सिटीज में लोग फिटनेस के लिए बड़े कॉन्शियस हैं, इवन हमारी सिटीज में भी है वैसे तो, पर वहाँ पे वो लोग फिटनेस कोच रख रहे हैं और वो फिटनेस कोच रोज ऑनलाइन उनको डेली एक्सरसाइजेस बताते हैं, उनको डेली डाइट्स बताते हैं, उनको डेली उठने का, सोने का, बैठने का, चलने का स्केड्यूल बताते हैं। पीपल फॉलो एंड दे मॉनिटर के हाउ द पीपल आर फॉलोइंग देयर कंटेंट। रोज सुबह उन्हें फोटो लेनी होती है कि आप वेइंग स्केल पे खड़े होगे और उसकी फोटो भेजोगे, और अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो आपको अगले 3 दिन के लिए कोई वीडियो या कंटेंट नहीं मिलेगा। इस तरह की स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स उन्होंने रखी होती हैं और तभी लोग उसको फॉलो करते हैं, दे आर एबल टू मेंटेन देयर गुड हेल्थ। तो इस तरह की चीज भी आप लोग कुछ ये शुरू कर सकते हो। असाइनमेंट कंप्लीशंस का काम बहुत चल रहा है आजकल, क्योंकि हर कोई कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका स्टडी करने के लिए जा रहा है और वहाँ पे जाके वो सब कुछ कर रहे हैं, बस स्टडी को छोड़ के बाकी सब कुछ कर रहे हैं। टैक्सी भी चला रहे हैं वहाँ पे, वो पिज़्ज़ा भी डिलीवर कर रहे हैं, वहाँ पे झाड़ू भी लगा रहे हैं, पेट्रोल पंप पे भी काम कर रहे हैं। तो जब वो स्टडी नहीं करेंगे तो क्या होगा? असाइनमेंट्स नहीं कर पाएंगे, असाइनमेंट्स नहीं कर पाएंगे तो उनके ग्रेड्स नहीं आएंगे, ग्रेड्स नहीं आएंगे तो उनको आगे एडमिशन नहीं मिलेगी, और आगे एडमिशन नहीं मिलेगी तो इंडिया वापस आना पड़ेगा। सो व्हाट दे डू, वो अपनी असाइनमेंट्स यहाँ इंडिया में भेज देते हैं या दूसरे कंट्रीज में भेज देते हैं, और वहाँ पे देयर आर पीपल हु सॉल्व दोस असाइनमेंट्स एंड सेंड दोस असाइनमेंट्स बैक टू देम, ठीक है, एंड देन दे आर आल्सो अर्निंग गुड मनी। 500, 700, 1000 रुपए से लेके 10-10 हज़ार रुपए तक लोग ले रहे हैं असाइनमेंट्स को सॉल्व करने के लिए। सो यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर योर कंटेंट्स। कोई ताए चाचे का मुंडा या बेटी कोई बाहर गई होवे और असाइनमेंट्स का काम होवे, तो देन यू कैन स्टार्ट योर ओन काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सॉफ्टवेयर एंड एप्स, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसमें मैंने एक एग्जांपल ये ली हुई है, दिस इज माय फेवरेट एग्जांपल, ज़ोहो बुक्स। इसका जो सीईओ है श्रीधर वेम्बू,
एक आईटी कंपनी में जॉब करता था, IITian था और 1.5 लाख रुपए एक महीने का कमाता था एंड नाउ ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट टैक्स पेयर्स इन इंडिया। आई गेस 4300 करोड़ रुपए की इसकी कंपनी है अभी, जोहो बुक्स। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि इसने कंपनी कहाँ पे खोली है। मेड्रॉस के एक छोटे से गांव के अंदर इसने कंपनी खोली है और गांव के जितने यूथ थे उन बंदों को आईटी फील्ड में ट्रेन किया और उन्हीं को हायर किया एंड दे आर एंजॉयिंग द रूरल एटमॉस्फेयर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट ग्लोबली ऑनलाइन। देन यू कैन क्रिएट मोबाइल एप्स। अभी ये आजकल कैनवा की एड बहुत चल रही है। कैनवा किस किसने यूज किया हुआ है? वन ओनली। कैनवा इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइंस। आप अपने प्रोफेशनल डिजाइन्स भी बना सकते हो, पर्सनल जैसे घरों के फ्रेम, फोटो फ्रेम्स वगैरह बनाने हो तो वो भी बना सकते हो। अभी ये जो स्टार्टिंग में एक बैनर लगा हुआ था येलो कलर का सेमिनार शुरू होने से पहले, तो दैट वाज आल्सो क्रिएटेड इन कैनवा। सो इस तरह के डिजाइंस आप कैनवा में बना सकते हो एंड देन यू कैन सेल दोस डिजाइंस एनीवेयर। फाइन। B612 किसने देखा हुआ? ये तो सबने देखा होगा। हाँ, पहले बहुत चला था, अब कम हो गया है। हाँ, अब क्या चल रहा है? स्नैपचैट चल रहा है। उसके फिल्टर ज्यादा अच्छे हैं। चलो गुड। सो यू कैन हैव एन आइडिया अबाउट कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट है और उसके हिसाब से आप लोग ऐप डेवलप कर सकते हो एंड देन यू कैन सेल दोज एप्स टू द मिलियंस ऑफ कस्टमर्स। तो आप लोग क्या सोच रहे हो कि ये कितना कमा रहे होंगे? देयर विल बी ह्यूज पोटेंशियल। आपको लगता है कि यार ये तो ऐप फ्री में दे रहे हैं, पर वो ऐप से जो एडवर्टाइजमेंट्स वो डिस्प्ले करते हैं उन एड्स से वो लोग बहुत कमा रहे हैं। देन यू कैन डेवलप सम काइंड ऑफ वेब टूल्स आल्सो, लाइक ये वूमली है, इस तरह के कुछ टूल्स हैं जो एनिमेशंस क्रिएट करने के काम आते हैं ऑनलाइन। डूडली है एक ऐप। और अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक फोटो प्रिंट करवानी थी, कोलाज बनाया था मैंने, और उस कोलाज में ना 2-3 फोटोज ऐसी थी जो थोड़ी ब्लर थी और 2-3 फोटोज ऐसी थी जो डार्क थी। तो मेरे को लगा कि यार ये पता नहीं ठीक आएगी कि नहीं। मैं यहाँ पे कलर लैब वाले के पास चला गया और उसको बोला कि इसका कोलाज बनाओ। कहता कि सर फोटोज ठीक नहीं है, मैं ठीक कर दूं। मैंने कहा कर दे। मेरे को लगा कि ये लगाएगा 2-4 घंटे। मैंने कहा मैं आता हूँ 10 मिनट तक, मतलब 2-4 घंटे तक, तो तू करके रख। कहता नहीं सर खड़े खड़े में करते नहीं। आई एम सरप्राइज कि ये कैसे करेगा। तो ही ओपनड दिस वन वेबसाइट Remini, REMINI। यू कैन सर्च दिस ऑन गूगल, Remini। इसने वो वेबसाइट खोली, वहां पे मेरी वो फोटो अपलोड कर दी। वो Remini ने AI टूल्स लगा के उस फोटो को ऐसा मॉडिफाई किया कि हर बंदे का चेहरा चमक गया उसमें। जहाँ पे लाइट चाहिए थी वहां पे लाइट आ गई, किसी के कोई पिंपल्स बने हुए थे वो पिंपल्स रिमूव कर दिए उसने, ठीक है। आसपास के एनवायरनमेंट थोड़े कलर करेक्शंस वगैरह करी एंड आई गॉट एन ऑल टुगेदर डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल फोटो, ठीक है। सो इस तरह की आप कोई AI की एप्स बना सकते हो जो फोटो की इंप्रूवमेंट के काम आ सकती हैं। एफिलिएट मार्केटिंग इज अनदर एवेन्यू। प्रोडक्ट रिव्यूज आप लोग कर सकते हो। आप लोगों ने ये YouTube चैनल्स पे देखा होगा, आजकल ये चीज बहुत चल रही है, ठीक है। अभी परसों चौथ में घर पे मेरे बच्चों ने वो लगाई हुई थी एक ब्लॉग, तो मुझे नाम भूल गया उस ब्लॉगर का। तो वो लोग वहाँ आदिवासी वाले के यहाँ पहुंचे हुए थे, जहाँ से वो आदिवासी तेल बनाते हैं। कौन था वो? नहीं, वही लड़का ही है एक, वो दो अलग अलग, कभी बॉय बन के आता, कभी गर्ल बन के आता है। नाम भूल गया उसका। राज, हाँ राज था मेरे ख्याल से। वो और उसकी पूरी फैमिली पहुंची हुई थी वहां पे आदिवासी वाले के यहाँ पे, और पूरा प्रोडक्ट रिव्यू कर रहे हैं। यू कैन सी देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। पहले आदिवासी वाले ने अपने प्रोडक्ट Amazon और Flipkart पे सेल करने शुरू किए एंड दे वर गेटिंग अ ह्यूज कट। वो उससे ले रहे थे 100 रुपए की बॉटल में से, सपोज करो 50 रुपए तो Amazon ही खा रहा था, उसके बेचारे के पल्ले अपने 50 पड़ रहे थे। पर ही डिड नॉट केयर, क्योंकि उसको अपना ब्रांड वैल्यू बनाना था। ब्रांड बना लिया। अब उसके बाद उसने क्या किया कि अपनी खुद की वेबसाइट बना ली और अपनी खुद की वेबसाइट से वो सारा का सारा मार्जिन खुद सेव कर रहा है, ठीक है। और अपने ब्लॉग्स में वो अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर रहा है कि अब आप Amazon Flipkart पे से मत खरीदो क्योंकि वहां पे नकली बिकता है, आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट से खरीदो, वहां पे असली है। तो दैट इज वन ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जहां से आपको ये सीखना है। देन देयर आर कंपैरिजन वेबसाइट्स आल्सो, कि आप अलग अलग कंपैरिजंस प्रोडक्ट्स के कि ये वर्सेस ये क्या लेना है, इस तरह के आप कुछ ब्लॉग्स बना सकते हो या अपने वीडियो चैनल्स वगैरह भी आप लोग बना सकते हो। देन फ्रीलांसिंग एंड रिमोट वर्क, इसमें कंसल्टिंग में बहुत काम है इंटरनेट पे, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, लॉ में, या
इवेंट टेक्नोलॉजी में। freelancer.com एक वेबसाइट है, upworks.com वेबसाइट है, ओडेस्क एक वेबसाइट है। इस तरह की काफ़ी सारी वेबसाइट है जहाँ पे फ्रीलांस काम मिलता रहता है। ठीक है, लाइक यू कैन स्टार्ट से आपको डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी आती है, आप कैनवा पे डिजाइन बना सकते हो या फोटोशॉप या कोरल में डिजाइन बना सकते हो, तो यू कैन गेट फ्रीलांस वर्क फ्रॉम दोज काइंड ऑफ वेबसाइट्स। वहां से आप काम लो, पहले सस्ते में काम लेके अपनी रेपुटेशन बिल्डअप करनी शुरू करो, और जब रेपुटेशन बन जाए, स्टार्स आपको मिल जाए सफिशिएंट, देन यू कैन रेज योर प्राइसेस। ठीक है, बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो जीरो से शुरू करके एंड नाउ दे आर अर्निंग इन लैक्स ऑन मंथली बेसिस। कोई बना रहा है, कर रहा है कोई काम आप में से फ्रीलांसिंग? ओके, गुड। फ्रीलांस राइटिंग का काम बहुत है। ठीक है, इसमें अब आजकल एक और नया काम बड़ा चल गया है, प्रोडक्ट रिव्यू करने का, कि यू नीड टू राइट सम गुड रिव्यूज अबाउट द प्रोडक्ट एंड फॉर पर रिव्यू यू विल बी गेटिंग सम गुड मनी। पर अब जनता और आगे तेज है, वो लोग क्या करते हैं, एआई फिल्टर्स लगा के देख लेते हैं कि कौन सी चीज वाकई में असली लग रही है, असली रिव्यू है, कौन सा फेक रिव्यू है। ठीक है, तो द वेबसाइट्स आर हैविंग दीज काइंड ऑफ सिस्टम्स। इवन Amazon और Flipkart ने ये रिव्यू रिकमेंडेशन सिस्टम जो है वो लगा रखा है एआई बेस्ड। वो देख लेता है कि कैसे रिव्यूज बार बार आ रहे हैं या जेन्युइन लग रहे हैं नहीं है, देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स, उसके बेस पे ये हो सकता है। देन डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। वर्चुअल इवेंट्स एंड वेबिनार्स, you can create a platform for hosting online workshops and conferences। जैसे एक openchair.org एक वेबसाइट मैंने देखी थी काफी देर पहले, वहां पे आप कॉन्फ्रेंसेस होस्ट कर सकते थे। ठीक है, देन देयर आर प्लेटफॉर्म्स लाइक ये Zoom है, WebEx है, Google Meet है, ये इस तरह के प्लेटफॉर्म्स आप क्रिएट कर सकते हो, पर ये एज इंडिविजुअल तो मुश्किल है, यू नीड टू हैव अ टीम फॉर दैट। सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इसका बहुत काम है। इसमें इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जैसे सपोज करो मुझे वो राज के साथ ब्लॉग बनाना था कि हमारा डीएवी कॉलेज बहुत अच्छा है, अब मेरे पास राज का कांटेक्ट नहीं है, आई विल बी गेटिंग सम मिडलमैन जिसका राज के साथ भी लिंक है और डीएवी जलंधर के साथ भी लिंक है। ठीक है, आई विल आस्क हिम टू नेगोशिएट द डील विद द राज सो दैट कि वो डीएवी के बारे में कुछ पॉजिटिव बोल सके या हमारी एड्स कर सके। ठीक है, सो दैट काइंड ऑफ वर्क इज दिस इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस। तो इस तरह के भी आप कुछ एवेन्यूज अपने लिए सोच सकते हो। देन देयर आर सोशल मीडिया मैनेजर्स, इन लोगों का पॉलिटिक्स में बड़ा रोल है। सोशल मीडिया मैनेजर्स का हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने सोशल मीडिया मैनेजर्स रखे हुए हैं, और उन मैनेजर्स ने अपने नीचे और मैनेजर्स रखे हैं, उन मैनेजर्स ने और नीचे मैनेजर्स रखे हैं, और उनके आगे और चेन बड़ी बनी हुई है, और सारी पार्टीज का अपना सोशल मीडिया पे बड़ा ह्यूज नेटवर्क है। आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कोई नेगेटिव कमेंट डाल के देखो तो सही जरा, आपको कैसे लोगों के मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। क्या वाकई में लोग इतने फ्री हैं कि आपको रिप्लाई कर रहे हैं? नो, दे आर पेड। कंपनीज की सोशल मीडिया मैनेजमेंट टीम है जो या इन पॉलिटिकल पार्टीज की सोशल मीडिया मैनेजमेंट टीम है जो आपके बारे में कुछ भी नेगेटिव लिखने ही नहीं देंगे। अगर आप ज्यादा लिखना शुरू कर दोगे आपका पेज ब्लॉक करवा देंगे वो, ऐसा भी होता है। कंटेंट क्रिएशन, आप किसी ब्रांड के लिए कंटेंट क्रिएशन पे काम कर सकते हो। ठीक है, लाइक जैसे कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं तो आप वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करके और उसके बारे में अपने रिव्यूज देके आप इस तरह से कुछ ना कुछ चीजें ये कर सकते हो। ठीक है, तो दीज थिंग्स आर बेसिकली ओवरलैपिंग। देन हेल्थ एंड वेलनेस पे आप लोग फिटनेस प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हो, मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज आप बना सकते हो, ऑनलाइन थेरेपीज, काउंसलिंग वगैरह ये चीजें आप दे सकते हो। ऑनलाइन काउंसलिंग बहुत चल रही है आजकल। साइकोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स हैं, साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, या साइकेट्रिस्ट, ये लोग स्पेशल कंसल्टेशन सेशंस दे रहे हैं क्योंकि लोगों में आजकल डिप्रेशन बहुत है, और वो लोग कतराते हैं कि यार मैं किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाऊंगा, लोग कहेंगे कि पागल हो गया तभी गया उसके पास। तो दे आर गेटिंग ऑनलाइन कंसल्टेशंस फ्रॉम साइकेट्रिस्ट। देन न्यूट्रिशनल गाइड से मैंने आपको बताया था कि इस तरह के बहुत से काम नेट पे अवेलेबल हैं कि आप न्यूट्रिशन अगर आप एक्सपर्ट हो, ठीक है, आपने कुछ इसका कोई डिग्री कोर्स वगैरह किया है, तो यू कैन स्टार्ट गाइडिंग अबाउट द न्यूट्रिशन टू द डिफरेंट पीपल फॉर देयर गुड हेल्थ। यू कैन स्टार्ट सेलिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। अब आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो एनवायरमेंट कॉन्शियसनेस बढ़ रही है यूथ में,
तो आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को अगर इको फ्रेंडली कह के बेचते हो तो वो जल्दी बिक जाता है, ठीक है। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई दीज काइंड ऑफ ग्रीन प्रोडक्ट्स या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। लास्ट ईयर हम लोग चंडीगढ़ गए थे, पंजाब यूनिवर्सिटी ने कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था ये IIC के साथ ही। वहाँ पे बच्चों ने अपने स्टार्टअप्स दिखाए थे, तो उन स्टार्टअप्स में कुछ एक स्टूडेंट्स ने क्या किया था, इस तरह के वो वुडन पेन्स उन्होंने बनाए हुए थे अपने, ठीक है। और वो कस्टमाइज पेन्स भी दे रहे थे कि हर पेन के ऊपर बच्चे का नाम लिखा हुआ। अभी थोड़े दिन पहले मैंने वो अप्सरा का भी देखा, एक वो ऐड आ रही थी टीवी पे। अप्सरा पे कस्टमाइज्ड पेंसिल्स भी मिलती हैं, बच्चे का नाम लिख के एनग्रेव करके वो लोग देते हैं। सो दैट काइंड ऑफ थिंग कैन बी देयर। देन जूट बैग्स की इंडस्ट्री, ये काफ़ी पॉपुलर है आजकल। आप लोग ये जैसे डीमार्ट वगैरह में भी जाते हो तो वहाँ पे वो प्लास्टिक के थैले देने की बजाय दे प्रेफर टू गिव जूट बैग्स, काफ़ी सेल हो रहे हैं, ठीक है। पेपर बैग्स हैं और ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेट पे बहुत बिकती हैं। ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी, इसको मैंने लास्ट में रखा है। रीजन बीइंग कि देयर इज अ ह्यूज रिस्क इन्वॉल्व्ड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। क्रिप्टो करेंसी में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो जे किस्मत चंगी है तो ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਰੋੜਪਤੀ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ किस्मत माड़ी है तो रातों रात लखपति भी बन सकते हो, करोड़पति, ठीक है। नेक्स्ट NFTs, नॉन फंजिबल टोकन्स। ये सुना किसी ने टर्म, ये NFTs क्या होती है किसी के पास? नहीं। These are basically the virtual kind of things जो यूनिक रहती हैं, ठीक है। किसी ने कोई डिजाइन क्रिएट किया है, वर्चुअल डिजाइन है, एंड देन यू कैन बाय दिस NFT। और ये किस काम आती है? कुछ भी नहीं, बोस्टिंग के लिए है सिर्फ। जैसे किसी को कलेक्शन का शौक है, कोई स्टैम्प्स कलेक्ट कर रहा है, कोई मार्बल्स कलेक्ट कर रहा है, तो उसी तरह से NFT के भी कलेक्टर्स होते हैं, ठीक है। एंड दे एक्सचेंज NFTs फॉर सर्टेन अमाउंट, ये भी आप कर सकते हो। Then there are so many success stories about these ventures on internet. I guess निश्चय सर ने बहुत अच्छे डिस्कस कर दिए थे ऑलरेडी, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। Zoho बुक्स थी, Amazon है, Uber है, Airbnb है। ये सुना हुआ आपने Airbnb? Yes, sir. क्या करता है ये? सर ऑनलाइन हाउसेस या आपको रेंट पे, हाँ रेंट पे मिलते हैं, ठीक है। ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। फॉरेन में ये कॉन्सेप्ट काफी चला था। इसके पैरेलल यहाँ पे ये ओयो ने शुरू किया है, ठीक है। ओयो के ओनर की मैं सक्सेस स्टोरी सुन रहा था, तो ही वाज बेसिकली अ मैनेजर इन गुड़गांव इन सम स्मॉल गेस्ट हाउस। तो वहाँ पे वो देख रहा था कि कोई बिजनेस इतना चलता नहीं है, नौकरी पे खतरा था। तो उसने क्या किया, अपने साथ वाले गेस्ट हाउस वाले को बोला कि यार तेरा गेस्ट हाउस मैं रेनोवेट करवा देता हूँ, एंड हो सकता है तेरे पास कस्टमर अच्छे आ जाए। तो उसने जो जो प्रॉब्लम्स अपने गेस्ट हाउस में फेस करी थी, उसने उन प्रॉब्लम्स को दूसरे वाले के गेस्ट हाउस में उसको रिमूव किया और उसका गेस्ट हाउस चल पड़ा। एंड देन ही स्टार्टेड गेटिंग ऑर्डर्स फॉर रेनोवेशन ऑफ गेस्ट हाउसेस। फिर उसने आगे सोचा कि चलो ठीक है, ये गेस्ट हाउसेस ऐसे बन रहे हैं तो क्यों ना एक ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया जाए जहाँ से लोग बुकिंग भी ऑनलाइन करवा सकें। और उसने वो बुकिंग करवा ली, अब रेनोवेशन का काम छोड़ दिया उसने, ठीक है। अब ना तो इन्वेस्टमेंट उसकी खुद की है, ना कस्टमर उसके खुद के हैं। कस्टमर उसकी साइट के थ्रू बुकिंग करवाते हैं एंड दे आर अर्निंग गुड मनी, ठीक है। इवन हम लोग भी जैसे कभी जाते हैं तो हम लोग की कोशिश होती है कि मेक माई ट्रिप या ओयो से या कहीं से ऑलरेडी पहले ही बुकिंग करवा के जाओ, ठीक है। क्योंकि ये वेकेशन पीरियड में तो आपको हिल स्टेशन पे रूम मिलने ही बड़ी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट स्टार्टअप्स। ये BTW एक मैंने बताया था लास्ट में, ये सुना किसी ने? BTW है तो शॉर्ट टर्म बनती है। दिस इज बिट्टू टिक्की वाला, सुना हुआ है? इसने सुना हुआ लगता है, हाँ। This guy was having a ready in front of some temple. ना तो ये ना इसका पार्टनर, दोनों ही बिट्टू नहीं थे। इनके साथ एक कोई फ्रेंड था जो गुरुद्वारे में जाता था इनके साथ, उसका नाम बिट्टू था, उसके नाम से लोग इनको जानते थे, ये बिट्टू के साथ आते हैं। तो इसकी रेडी का नाम इसने बिट्टू रख लिया। अब उस रेडी के बाद इसने 17 डिफरेंट आउटलेट्स पिछले साल थे इसके दिल्ली में, रेस्टोरेंट्स की चेन थी। कहाँ रेडी से इसने वो चेन शुरू कर ली, और अब यहाँ पे मोहाली खरड़ में भी इसका बिट्टू टिक्की वाले का पहला पंजाब का स्टोर खुल गया। आई थिंक जनवरी फरवरी में ही खुला है। एंड यू कैन सी कि कितना रश है उस बिट्टू टिक्की वाले के पास। BTW सर मोहाली खरड़ दे ਜਿਹੜਾ पहले दिल्ली थी ना। हाँ दिल्ली ਸੀਗਾ 17 ਚੇਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ दिल्ली पहले जब कुछ ये पैकेट बना दिए। हाँ कई कुछ है। तो सी
बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप है भी, उसके अंदर जज्बा था, रिस्क टेकिंग एबिलिटी थी, ठीक है, और ग्रोथ का उसके अंदर वो हंगर थी कि मैंने आगे बढ़ना है, और वो बढ़ गया। सो हियर यू कैन सी 102 डिफरेंट स्टार्टअप्स जो यूनिकॉर्न बन चुके हैं इंडिया में। अब मेरे ख्याल से 124 हो गए हैं। जब मैंने फोटो ली थी तब 102 थे उस टाइम। इसकी फोटो ले लो सभी इंस्पिरेशन के लिए। इंस्पिरेशन के लिए फोटो यू कैन हैव। और देखो कितने बताया आपको इनमें। नाउ व्हाट यू नीड टू स्टार्ट योर ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है, ये तो चलो एक एवेन्यूज हो गए कि आप क्या क्या कर सकते हो, और वो करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। पहली बात, यू नीड टू आइडेंटिफाई योर निश मार्केट, कि आपको करना क्या है, मार्केट की डिमांड क्या है, मार्केट में चल क्या रहा है, ट्रेंड क्या है। आप होली के आसपास पटाखे बेचने शुरू कर दो, ठीक है, या दिवाली पे आप वो कलर्स बेचने शुरू कर दो, तो क्या वो चलेगा? नो। जो बचा होगा। हाँ, जो बचा होगा, जो होली वाला बचा होगा वो दिवाली पे चल पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको मार्केट रिसर्च करनी है कि आजकल ट्रेंडिंग क्या है, आने वाले टाइम को आपको फोरकास्ट करना है। अब जैसे आजकल का जो सीजन है, इस सीजन में एक मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि यू कैन मेक फ्रेग्रेंट कैंडल्स। बहुत चल रहा है ट्रेंड मार्केट में, वो छोटे छोटे ना कांच की बॉटल्स में फ्रेग्रेंस वाली कैंडल्स बिक रही हैं। 300-400 रुपए में वो कैंडल्स बिकती हैं। आई सॉ वन स्टार्टअप इन चंडीगढ़, वहाँ पे हम लोग गए थे जब, तो बच्चों ने शुरू किया हुआ था, और वो कैंडल्स मैंने अभी भी अपने रूम में रखी हुई हैं, और वो ढक के रखता हूँ उसको बंद करके। जैसे ही मैं उसका ढक्कन खोलता हूँ, वो ऐसी उसकी फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो जाती है कमरे में, और खुशबू भर जाती है। उसके बाद मैं उसको ढक के फिर से बंद कर देता हूँ सेलोफेन पेपर से, ठीक है। सच गुड फ्रेग्रेंस कैंडल्स, और वो मेरे ख्याल से उसने 300 में दी थी सर, है ना, 3 कैंडल्स। इंटरनेट पे आप 450 रुपए में 3 कैंडल्स मिल रही हैं, 500 में। तो उसकी कॉस्ट क्या है? बेसिकली दैट कैंडल इज नॉट कॉस्टिंग मोर देन 30-35 रुपीज पर कैंडल। तो 100 रुपए की जो 3 कैंडल्स हैं, वो आप 500 रुपए में 3 बेच रहे हो। तो शिपिंग भी अगर डाल लो, कमीशन में निकालो, देन यू कैन हैव गुड मनी। और ये बेकिंग की कब, दीज आर काइंड ऑफ गिफ्टिंग आइडियाज। अब अभी क्योंकि फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है, लोग गिफ्ट देने वाले हैं एक दूसरे को, तो देयर विल बी अ ह्यूज डिमांड फॉर दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। तो आप ये मार्केट में कुछ सोच सकते हो कि किस तरह के गिफ्ट आइडियाज चल सकते हैं, और अपना कोई बिजनेस ऑनलाइन आप शुरू कर सकते हो। धक्का मत करो। धक्का मत करो। हाँ। कम देखो। Then you need to create, अच्छा, अगर मार्केट का प्रोडक्ट ही अकेला आइडेंटिफाई करने से कुछ नहीं होगा, you need to create a business plan। अपने बिजनेस के आपको गोल्स सेट करने पड़ेंगे कि मैंने इस मंथ कितनी टारगेट रखना है, कितनी सेल मैंने करनी है, ठीक है। आपको अपने टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करनी है। जैसे अब ये कैंडल के कस्टमर्स कहाँ पे होंगे? गांव में तो होने से रहे, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी इन एनसीआर या जो मेट्रो सिटीज हैं वहाँ पे ज्यादा होंगे। तो आप लोग अपने प्रोडक्ट्स को वहां पे एडवर्टाइज करोगे जहां पे खरीदने वाले लोग हैं, ठीक है। देन राजस्थान रेगिस्तान में छतरी बेचने का है फायदा? तो बवाली से बिकी जाएगी यार, धूप रोकने वाली। चलो एनीवेज, सो आपको ये देखना है कि टारगेट ऑडियंस कहाँ पे है, और वहां पे आपको उसको एडवर्टाइज करना है। देन यू नीड टू बिल्ड योर ऑनलाइन प्रेजेंस, ठीक है। अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी जरूरी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी वेबसाइट बनानी पड़ेगी। अब क्या होता है, कई बार जब भी मैं कोई नया प्रोडक्ट देखता हूँ अमेजोन पे, तो मैं सबसे पहले उसका ब्रांड नेम देखता हूँ कि क्या नेट पे अवेलेबल है, उसकी अपनी वेबसाइट है। तो दैट गिव्स मी एन ऑथेंटिसिटी कि हाँ अच्छा, इसकी कंपनी की अपनी वेबसाइट है, तो मतलब खर्चने की वो क्षमता रखता है, ठीक है। और खर्चने की वो उसमें कैपेसिटी है, तो दैट मीन्स कि उसके प्रोडक्ट में भी क्वालिटी बनी हुई, ठीक है। ये वन ऑफ द क्राइटेरिया है। कई बार गलत भी हो जाता है, पर जनरली अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो वो कस्टमर हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट खरीदे ही ना, ठीक है। तो प्रोफेशनल वेबसाइट आपको डेवलप करनी पड़ेगी, और सोशल मीडिया के थ्रू आपको उसको एडवर्टाइज भी करना पड़ेगा। मार्केट योर बिजनेस बाय यूजिंग SEOs, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस बनाओ, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करो, पे पर क्लिक कैंपेन्स रन करो। इन कैंपेन्स में क्या होता है कि यू सेट योर ओन बजट। आप 500 रुपए से शुरू कर सकते हो पर डे या पर वीक या पर मंथ, एंड स्काई इज द लिमिट, कितना आप खर्चना चाहते हो। तो जितना आप इसमें मनी डालोगे, उतनी ज्यादा आपकी एड को वो लोग सोशल मीडिया पे स्प्रेड करेंगे, और उतने ज्यादा कस्टमर्स आप वहां पे अपने प्रोडक्ट के एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड यू ऑल्सो नीड टू हैव कंटेंट मार्केटिंग, कि लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज लिखें, आपके प्रोडक्ट के ब्लॉग्स बने, ताकि उस चीज को पढ़ के वो लोगों में कॉन्फिडेंस आए पाए इनका।
इतना ही काफ़ी नहीं है, यू नीड टू मॉनिटर एंड अडेप्ट द न्यू स्ट्रेटजीज। जो सेल्स हो रही हैं आपको रोज़ की रोज़ सेल्स देखनी पड़ेगी, ठीक है, उसके हिसाब से आपको डेटा बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस दिन ज़्यादा बिक रहे हैं। लाइक लेट्स से जैसे अमेज़ॉन पे आपने अपने कोई एपल्स का या कपड़ों का कोई आपने स्टोर खोल लिया, वहाँ पे बेच रहे हो कपड़े, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कपड़े किस दिन बिकते हैं, तो उससे 1 या 2 दिन पहले की ऐड आपको लगानी पड़ेगी। लेट्स से जैसे लोग कहते हैं कि जी थर्सडे को कपड़े नहीं खरीदने, सुपरस्टिशन लेट्स से मैंने ऐसे बना लिया कि थर्सडे को नहीं खरीदने, तो मैं अगर ट्यूसडे या वेंसडे को ऐड लगाऊंगा वो थर्सडे को वेस्ट जाएगी मेरी। तो व्हाई नॉट पुट दैट एडवर्टीजमेंट ऑन फ्राइडे सो दैट यू हैव द एंटायर वीक फॉर द परचेज ऑफ योर प्रोडक्ट्स, ठीक है। और इन स्ट्रेटजीज को आपको रेगुलरली चेंज करना पड़ेगा। देन व्हाट आर द चैलेंजेस एंड कंसीडरेशंस? द बिगेस्ट चैलेंज इज द कंपटीशन। मार्केट में आप आज की डेट में आप कोई भी प्रोडक्ट सोच लो कि मैं ये बेचूंगा, तो वो प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। क्या कभी ऐसा हुआ कि प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे अवेलेबल ही ना हो? कभी भी नहीं होता। कुछ भी आपने ये भी इवन ये खरीदना है, डाइस खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, इवन एलईडी बल्ब खरीदने हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपके पास ऑलरेडी कोई ना कोई सेल कर रहा है। सो देयर इज अ कंपटीशन। तो उस कंपटीशन को विन करने के लिए आपको अपनी स्ट्रेटजीज उस हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी। देन साइबर सिक्योरिटी। अगर आप अपनी वेबसाइट के थ्रू प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो तो देन साइबर सिक्योरिटी कैन बी वन ऑफ द हर्डल्स। कि आप अगर क्रेडिट कार्ड नंबर्स लोगों के एक्सेप्ट कर रहे हो या ऑनलाइन बैंकिंग क्रेडेंशियल्स आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उन क्रेडिट कार्ड नंबर्स के लिए या बैंकिंग डिटेल्स को सेफ कैसे रखना है आपने, डेटा लीक ना होने देना, तो दैट इज वन ऑफ द चैलेंजेस। देन डिजिटल मार्केटिंग बहुत डायनामिक फील्ड है। इस फील्ड में रोज कुछ ना कुछ नया आता रहता है, तो आपको अपने डिजिटल मार्केटिंग टीम को हमेशा अप टू डेट रखना पड़ेगा। उन लोगों को नए नए कोर्सेज करवाने पड़ेंगे, ठीक है, उनसे नई नई सर्टिफिकेशंस करवाओ आप और उनको नए नए चैलेंजेस उनके लिए सेट करो, तभी ये बात बनेगी। देन लीगल एंड रेगुलेटरी इश्यूज ये बड़े आते हैं। आपने जैसे मैंने आदिवासी वालों की एग्जांपल दी कि उन लोगों के नकली तेल बड़े बनने शुरू हो गए, ठीक है, ओरिजिनल आदिवासी तेल, ठीक है, असली आदिवासी तेल, आदिवासी में वो आई डबल लगा दिया, लास्ट में नाम चेंज हो गया। तो इस तरह से करके लोग काउंटरफीट प्रोडक्ट्स बहुत बेचते हैं। तो इस तरह के लोगों के साथ कैसे डील करना है, यू नीड टू हैव अ लीगल टीम हु इज गोइंग टू डील विद दीस काइंड ऑफ इंट्रिकेसीज। ये सब देखना पड़ेगा आपको। इन द एंड आई एम मेंशनिंग सम टूल्स एंड रिसोर्सेज। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, अगर आपने अपनी वेबसाइट शुरू करनी है, आपको वेबसाइट बनानी नहीं आती है, यू आर फ्रॉम नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड, then you can go for these tools like Shopify या WooCommerce या Zencart। ये tools जो हैं ये automatically pre-built tools हैं। इसमें सिर्फ आपको डेटा एंटर करना होता है और आपके प्रोडक्ट ऑनलाइन लिस्ट हो जाते हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस इसमें आपको डिजाइनिंग नहीं करनी पड़ती, डेवलपमेंट नहीं करनी पड़ती, सिर्फ जस्ट अपलोडिंग द कंटेंट्स ऑन द पोर्टल, ठीक है। इट इज एज इजी एज पोस्टिंग समथिंग ऑन फेसबुक या इंस्टाग्राम, वैसा ही है। Then you need to understand the digital marketing tools like Facebook, Google, उसका X है, Threads है, TikTok, Snapchat, WhatsApp, Mailchimp। ये सारे प्लेटफॉर्म्स आजकल यूथ हम लोगों से ज़्यादा जानता है, ठीक है। इवन मुझे भी कई बार कुछ देखना होता है तो मैं अपनी बेटियों को बोलता हूँ कि ये बताना इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे ये कैसे पोस्ट करना है या इसके बारे में कैसे और आगे लिंक पर कैसे खोलना है, ठीक है। सो यू नीड टू बी अपडेटेड अबाउट दीज टूल्स। Then for financial kind of things you have PayPal, जो आपके पेमेंट गेटवेज हैं, पैसे लेने कैसे हैं लोगों से, तो यू कैन हैव इंटीग्रेशन विद PayPal, Stripe, CC Avenue, Razorpay। ये कुछ नॉमिनल फी लेके, नॉमिनल फी इन द सेंस लाइक 1.5% से लेके 2.5% तक लेते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू, और ये आपको पेमेंट गेटवे सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं एंड देन दे कैन रिडीम द मनी टू योर अकाउंट ऑन वीकली बेसिस। ये चल सकता है। Learning platforms, you need to learn some technology about selling online, तो there is Coursera and Udemy। इन दो वेबसाइट्स पे आप ऑनलाइन या डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी कोर्स परचेज करके आप उस कोर्स को स्टडी कर सकते हो। इवन यूट्यूब भी है जहाँ पे फ्रीली ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं, और वो क्या कहते हैं ना कि फ्री दी चीज़ का मुल नहीं पैंदा,
तो it's always better to buy some course and then make it a habit to go through that course for let's say 1 hour. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ऑनलाइन पढ़ने वाले वही सक्सेसफुल हैं जो रूटीन बनाते हैं कि लेट्स से आज 4 से लेके 5 बजे तक हर रोज मुझे 1 घंटा यूट्यूब पे पढ़ना है. जब ये रूटीन आपके मन में बनी होगी कि रोज 4 बजे से 5 बजे तक, वो तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे. अगर आप कैजुअली इसको लेते हो कि चल आज टाइम नहीं मिला, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, नो. जैसे आप कॉलेज में आते हो रूटीन में रोज, वैसे ही आप उसको भी रूटीन बनाओगे, रोज पढ़ना होगा. देन एक ये मैंने वीडियो लगाई थी, यहाँ पे वो चलेगी नहीं. ये वीडियो थी बेसिकली अबाउट अ टीम वर्क. मेरा अपना लैपटॉप नहीं अवेलेबल आज, नहीं तो उस पर चल रही थी. तो इसमें वो एक फुटबॉल की मैंने एग्जांपल ली हुई थी, मैड्रिड वाली थी मेरे ख्याल शायद. वो जो पास ऑन पास खेल रहे होंगे फुटबॉल, तो एक दूसरे को फुटबॉल पास करी जा रहे, लास्ट में तकरीबन 3-4 मिनट तक पास होंगे रहे और लास्ट में गोल किया. तो द मोटिव ऑफ दैट शोइंग दैट वीडियो वाज कि यू नीड टू हैव अ टीम वर्क. अब ये सारे काम मैंने इतने बता दिए. कंटेंट क्रिएट भी करना है, उसको इंटरनेट पे पोस्ट भी करना है, उसके सेल्स को मॉनिटर भी करना है, पैकिंग भी करनी पड़ेगी आपको, डिस्पैच भी करना पड़ेगा. तो ये अकेले बंदे के बस की बात नहीं है. यू नीड टू हैव अ टीम. तो उस टीम में आपको सारे अपने जैसे बंदे नहीं चाहिए. यू नीड टू हैव पीपल विद डिफरेंट एबिलिटीज. ठीक है, कोई डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में एक्सपर्ट है तो आप उसको डिजाइनिंग का काम दोगे. ठीक है, कोई राइटिंग में एक्सपर्ट है तो आप उसको प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखने का काम दोगे. ठीक है, कोई जिसको कुछ नहीं आता आप उसको पैकेजिंग का काम दे दो. ठीक है, जो कोई आपका अकाउंट्स वाला स्टूडेंट है या फ्रेंड है कॉमर्स स्ट्रीम से, आप उसको फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का काम दे दो. तो इस तरह के 4 या 5 लोग आपको चाहिए होंगे जिनके साथ मिलके आप ये सारा अपना ऑनलाइन बिजनेस जो है वो सेटअप कर सकते हो. टू बिगिन विद अगर आपका छोटा सेटअप है तो चलेगा 1 या 2 बंदे, पर अल्टीमेटली यू नीड दीज 4-5 पीपल एट लीस्ट टू रन योर बिजनेस. So that's all from my side today. If you have any questions, so you can ask. वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होगी? वेबसाइट को बेटे बनाने के लिए तो आपको टेक्नोलॉजीज चाहिए. स्टार्टिंग में HTML आनी चाहिए. ठीक है, अगर आपने उस वेबसाइट से कुछ ट्रांजैक्शंस करवानी है तो कोई ना कोई बैकएंड आना चाहिए, PHP या .NET या JSP. ठीक है, लाइक कंसल्टेंसीज के रिलेटेड अगर मैंने कुछ देना है वेबसाइट पर, ओके, तो कैसे उसके लिए तो देयर इज बेसिकली अ टूल कॉल्ड वर्डप्रेस. ठीक है, आप godaddy.com पे जाके वहां पे वर्डप्रेस होस्टिंग परचेज कर सकते हो, अपना डोमेन नेम परचेज कर सकते हो. वहां पे आपको वो वर्डप्रेस पे कुछ भी जीरो कोडिंग करनी पड़ेगी. कोई कोड नहीं करना आपने. वो इंटरफेस की तरह है. वहां से आपको वो पूछता रहेगा कि पेज बनाना है कि पोस्ट बनानी है. अब वहां पे पेज पे क्लिक करो, फिर उसका टेक्स्ट पूछ लेगा. वहां पे व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट वाला एनवायरनमेंट है, विजिबिलिटी जैसे MS वर्ड होता है. तो उसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसे जैसे आप करते रहोगे वो ऑटोमेटिकली बैकएंड पे उसकी HTML क्रिएट करता रहेगा एंड यू कैन क्रिएट दैट वेबसाइट योरसेल्फ. ठीक है, अदरवाइज अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो देन देयर आर सर्टेन प्रोफेशनल्स, या आप अपने फ्रेंड सर्कल से हेल्प ले सकते हो जिनको ये आता होगा. ठीक है, या फिर यहाँ पे आप एड ऑन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो. कॉलेज में भी यहाँ पे एड ऑन कोर्स है. मैंने किया था HTML फर्स्ट ईयर. ओके, चलो गुड. सो बेसिकली लास्ट मुकदी गल है कि टीम वर्क है. ठीक है, अपने आसपास के टीम मेंबर्स आइडेंटिफाई करना शुरू करो एंड प्लान अबाउट योर फ्यूचर. ठीक है, जॉब इज नॉट द फ्यूचर, एंटरप्रेन्योरशिप इज द फ्यूचर. थैंक यू. Thank you, Dr. Ajipuri, for such an exhaustive and elaborate talk regarding how you can be a successful entrepreneur in technology. तो डॉक्टर पुरी ने मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स टच कर दिए स्क्रैच से. सबसे पहले ज़रूरी है इंस्पिरेशन. तो आई होप आपको एक किक तो मिली होगी कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, है ना. तो और अगर हम वैसे देखें ना अदरवाइज भी, तो बिजनेस डायमेंशन टोटली इट हैज़ चेंज्ड. Now it is not a traditional, say, shop, showroom concept. Even I purchased an air conditioner about 10
2 years back, I guess, or 1 year back, I don't remember exactly. It was a famous brand called Daikin. Most of you must have heard about it. So what I did was, हमारी हैबिट बन चुकी है कि कितने का है, इंडियन टेंडेंसी, सस्ता कहाँ से मिलेगा. मेरे कोई नोन थे एयर कंडीशनर, वो खुद भी सेल करते थे, प्रॉब्ली डिस्ट्रीब्यूटर थे. उनसे मैंने ये पूछा कि विच इज़ द बेस्ट एयर कंडीशनर अवेलेबल. सो ही सजेस्टेड Daikin of course, but he suggested कि most of the shopkeepers or the malls, they are sending the models which are not up to the mark. एक मॉडल उन्होंने मुझे बताया, I still remember the series, it was called JTK, it was the top model, and the same happened. I inquired about from most of the renowned showrooms. I could not find that particular model. अब मॉडल वो महंगा था. मैं फिर क्रोमा गया. पहले तो क्रोमा की वेबसाइट गया कि वहाँ पे है, वहाँ पे था. तो मैंने फिर दिमाग में आता है ना, ऑनलाइन परचेज करूँ कि ना करूँ. तो आपने देखा होगा क्रोमा का शोरूम, इट इज़ अ वेरी बिग शोरूम एट गुरु नानक मिशन चौक. वेरी कैची, बाहर लाइट जग रही हैं, ऐसे लग रहा है सारी दुनिया वहाँ से सामान खरीदने आई. आई ऑल्सो वेंट देयर. मैंने कहा मुझे आई नीड एन AC. तो ये मॉडल, वो भी थोड़े अलर्ट हो गए कि बंदे को नॉलेज है. कोई पर्टिकुलर मॉडल मैंने पूछ लिया. तो कहते हैं हाँ जी सर आओ, 1 मिनट हम बात कर, लेट मी चेक माई इन्वेंट्री, ये वो फलाना टिमकना. तो ही वेंट टू हिज कंप्यूटर, मैं उसके पीछे चला गया. कहते हैं हाँ सर हो जाएगा पर कल मिलेगा. मैंने कहा वो क्यों भी है, पर मिलेगा कल, मुझे तो आज ही चाहिए. कहते हैं नहीं हमारे वेयर हाउस में है, प्रॉब्ली दे वर गोइंग टू ऑर्डर इट फ्रॉम दिल्ली. तो अच्छा ठीक है. मेरे को फिर नहीं, घर होते हैं ना बुजुर्ग, पापा कहते हैं यार तू AC भी ऑनलाइन मंगवाएगा, AC तो कम से कम लोकल मार्केट से ले लो, बाद में कोई प्रॉब्लम आ जाए. मैं कहा पापा ज़माना बदल गया है, सर्विस वगैरह सारी ठीक मिलेगी, वही तो है. नहीं जी. अच्छा. मैं वहाँ चले गया. कहते ऑफलाइन. मैंने कहा अच्छा. उस पर कार्ड डिस्काउंट चल रहा था HDFC का. सी हाउ थिंग्स आर बीइंग मार्केटेड. 2000 रुपये का कार्ड डिस्काउंट चल रहा था. मैंने कहा लो जी कार्ड, गिव मी राइट अवे. कहते नहीं सर कार्ड डिस्काउंट आपको ऑनलाइन ही मिलेगा. कमाल है यार, मैं बंदा खुद आपके यहाँ पे चल के आ गया 50,000 की चीज लेने, आप उसको दे ही नहीं रहे हो. मैं कह रहा हूँ मुझे यहाँ से दो, आप मुझे कह रहे हो ऑनलाइन. मैंने आना क्यों था. कहते ये नहीं. सो दिस इज द पॉलिसी टेक्नोलॉजी के थ्रू. क्योंकि हर मॉडल वो अपने शोरूम में इतना बड़ा होने के बावजूद they cannot place all the models in display and they cannot build such a large inventory, but they can always have a warehouse जहाँ पे ऐसे ऐसे मॉडल्स पड़े हैं. एंड सी वो तो शोरूम देख लिया, आप लोगों ने भी देख लिया, कईयों ने नहीं भी देखा, पर ऑनलाइन की रीच तो यू कांट इमेजिन मैं कहाँ पे बैठ के कहाँ पे ऑर्डर कर रहा हूँ. राइट. सो दैट इज द क्रोमा जो शोरूम है, इट इज जस्ट फॉर विजिबिलिटी पर्पज. ऑल्सो दे मस्ट बी पेइंग वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ रेंट फॉर इट, बट स्टिल इट इज जस्ट एन एडवर्टाइजमेंट. वहाँ जितनी सेल है और जितनी उनकी ऑनलाइन सेल है, इट विल नॉट बी कंपेयर्ड. और उसके टॉप पे आपको कॉइन्स दे रहे हैं. और दूसरी बात ये, रिलायंस डिजिटल भी है. आज मैं क्रोमा में चला गया, कल मैं वहाँ उठ के चला जाऊँ मुंह उठा के. लेकिन जब मैं क्रोमा का कस्टमर ऑनलाइन बन गया ना, तो उनकी 2-3 ऐप्स और हैं, वो मुझे रोज मोबाइल पे नोटिफिकेशन भेजती रहती है कि आपने ये तो नहीं लेना, कहीं आपने वो तो नहीं लेना. सो सी हाउ बिजनेसेस आर ग्रोइंग एंड दी हार्ट बिहाइंड ऑल दिस ग्रोथ इज टेक्नोलॉजी. और आप लोग टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हो. ये तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स की मैंने ऑप्शन दिया आपको, तो सर ने इतनी सारी ऑप्शंस दी हैं. कहाँ कहाँ आपकी टेक्नोलॉजी वर्क करके एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकती है. एंड यू ऑल कैन बी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. बट द ओनली थिंग सर एम्फसाइज इन द लास्ट वाज टीम वर्क एंड द नीड टू स्टार्ट. कहते गलत स्टार्ट ले लो, चाहे दौड़ते दौड़ते आप पहुंच ही जाओगे अपनी मंजिल पे, पर अगर स्टार्ट ही नहीं लोगे ना तो वहीं खड़े रह जाओगे. सो विद दीज वर्ड्स आई वंस अगेन थैंक डॉक्टर अजीब पुरी फॉर हिज वंडरफुल टॉक. I also thank Professor Ritika Puri for Ritika Sauti for being a patient listener, and Dr. Reena, वो भी यहाँ पे आए अपना कीमती समय निकाल के. इनके लिए एक बड़े तालियां बजाओ. और आप सभी प्यारों बच्चों का, आपने भी बहुत अच्छा डिसिप्लिन शो किया, ध्यान से सुना. And I hope one day we will have a unicorn from DAV College. Thank you so much everybody. Now we'll have a group photograph. सामने आप यहाँ आ जाएंगे. मिस्टर दीपक का भी मैं थैंक करना भूल गया. ऑलवेज देयर. ये जो लाइट एंड साउंड एवरीथिंग, ऑडियो वीडियो सब इनकी देन है. देखते हैं यूट्यूब पे कैसा वीडियो है. तो लेट्स कम फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ.
बट जाते हुए ना आपको इसके सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। आप जाते हुए यहाँ एक बार